Welcome, Fox. So now we are starting off with chapter 14, and that is more about the age of Mauryas. Until now, we had understood about a lot of things. Like in the last video, we discussed about the state and the Varna system that was prevalent at the time of Buddha. So now is the perfect time to start off with the age of Mauryas, so that we better understand about the second wave of urbanization about which we were talking about in the last video. So let's get started off with the video. So let's get started. So guys, this is about age of Mauryas, and in the earlier videos we had discussed about the dynasties that were before the Mauryas in the Magad period or Magda Empire. So basically, before Mauryas, that were Nanda dynasty. So let's understand about Mauryas first, because we had discussed about Nanda dynasty and all in the earlier videos. So Mauryas dynasty was founded by Chandragupta Maurya, because we do know Nanda के बारे में कि Nanda dynasties में कि how they insulted Kautilya. And then Kautilya trained Chandragupta Maurya, and with the help of Kautilya, Chandragupta Maurya, they both just formed their empire at the Magad. So he took advantage of growing weakness and unpopularity of Nanda and established Maurya dynasty with the help of Chanakya. उसके बारे में हमने स्टोरी पहले सुन ली है. तो चंद्रगुप्त liberated northwest India from the thraldom of Seleucus, who ruled over area west of Indus. उनका पहले रूल था Seleucus का, and then Chandragupta Maurya liberated India from them. So he was autocrat, no doubt in that, because he established his authority and the things were more into centralized वाला part. We had discussed in the earlier video also कि जो सारा system था that was more towards centralization. So that's how all the power was concentrated in the hands of the king. So he was autocrat and concentrated all power in his hand. So if we talk about empire, so empire was divided very beautifully. For example, it was divided into provinces, and for each province there was prince, and for the under provinces smaller units, rural था, urban administration proper, वो पूरा एक layout था. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आप ये सोचिए कि सबसे ऊपर प्रोविंस था, और प्रोविंस के नीचे आएगा, जब हम डिविजन्स की बात करें, प्रोविंस उसके नीचे आ जाएगा डिवीजन, एंड डिवीजन के नीचे था डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते थे ग्रुप ऑफ 4 to 5 विलेजेस. देन कम्स विलेज, राइट, बिकॉज विलेज के ग्रुप से बन गया ये. अब आप देखो विलेज की कंबाइंड 4 से 5 अगर विलेज बनेंगे तब जाके वो डिस्ट्रिक्ट था, और फिर वो जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक डिवीजन होता था, फिर मल्टीपल डिवीजन्स को मिला के प्रोविंस, राइट. तो इस तरह से फर्दर डिविजन्स थी. अब इनको हेड करने के लिए भी डिफरेंट लोग थे. तो प्रोविंस के जो हेड होते थे वो गवर्नर थे, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो उनके थे प्रदेशिकास, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजुकास, और अगर हम ये ग्रुप ऑफ 4 to 5 विलेजेस की बात कर रहे हैं तो वो थे स्तंभिकास, और ये जो विलेज था इनके जो हेड होते थे वो हमने देख लिया ग्रामीणी. तो ये पूरा डिवीजन इस तरह से था. प्रोविंस के अंदर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड विलेज, और प्रोविंस के जो हेड थे गवर्नर, डिवीजन के प्रदेशिका. अब देखो कितना सिस्टमेटिकली हर चीज को उन्होंने डिजाइन करा हुआ था. सो आई थिंक माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल फ्रॉम हेयर. सो इट्स बेसिकली स्तमिकास, and this village part, this is known as ग्रामनी, राइट. तो ये पूरा डिवीजन था जिसके अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी जो मौर्यन एम्पायर था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था. आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि किस तरह से, जैसे हमारे इंडिया के केस में भी ना सेंटर, फिर स्टेट के अंदर इस तरह से डिफरेंट म्यूनिसिपल अर्बन एरियाज के लिए फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, रूरल एरिया के लिए पंचायत, तो पूरा प्रॉपर उस तरह से ही अरेंजमेंट था. So I hope now this point is very much clear to you about the empire कि किस तरह से empire था. Then Chandragupta maintained high army, also maintained navy, because anyhow हमने last videos में देख लिया है कि किस तरह से when outsiders, invaders came to India, they understood and exploited more routes to come to India, like sea route and all. तो definitely ऐसे situation में they were like compelled to have navy also. अब देखो इतनी बढ़िया आर्मी अगर आपको मेंटेन करनी है, like you have very high army, you have very high or maintained navy, so for that you have to spend lot of money on that resources, right. और वैसे भी हमने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप के उनके पास रिसोर्सेज थे, किस तरह से उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अपना मॉनिटर और तरीके से रखा हुआ था. सो अगर वो आर्मी की भी बात करें तो 6 विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज
आर्मी, कैवेलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, नेवी, ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंट टाइप्स की उनके पास आर्म्ड फोर्सेस थी। तो स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रिल। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन सब चीजों से आई बिलीव वी अब भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज द लेवल ऑफ एक्सीलेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। State enjoyed monopoly in mining, sale of liquor, manufacturing of arms and etc. लिकर को हमेशा से ही जो स्टेट है वो कंट्रोल करना चाहती है, बट बिकॉज समहाउ पीपल और द स्टेट ऑलवेज डू नो कि लाइक एस बुद्धा से ना कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। वाई? बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डिजायर्स। सो वो डिजायर्स फुलफिल होती नहीं है तो सॉरोनेस बढ़ता जाता है, और लोगों को कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है कि वो सॉरोनेस को हम ओवरकम तो नहीं कर सकते, हम बुद्धा तो नहीं बन सकते, सो लेट्स फॉरगेट दैट सॉरोनेस फॉर सम टाइम एंड दे वेंट ऑन टू हैव लिकर एंड ऑल। दैट्स वाई लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन वट एवर द गवर्नमेंट केम दे ऑल वॉन्ट टू कॉन्कर द लिकर पार्ट। तो वो पहले भी था, मौर्यन एम्पायर में भी ये सेम चीज थी। सो इन मौर्यन एम्पायर ऑल्सो like government was controlling liquor also. So that was more about Chandragupta Maurya and all. Then comes Ashoka. He was the like the king who was very powerful and influential, but after that, after Ashoka जो kings आए that were not that much good enough कि वो empire को बहुत आगे तक लेके जा सकते। So let's discuss about Ashoka. Okay, so firstly we will discuss about Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya के बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोका। So according to Buddhist tradition, he was so cruel in his early life that he killed his 99 brothers to get throne. अब ऐसा बोला जाता है कि जब अशोका को पोजीशन लेनी थी एज अ किंग तो उसके लिए वो लड़ाई करनी पड़ी थी जिसमें उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था। सो इनकी डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस मिलती है अगर हम अशोका की बात करें, और जो डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं उसमें कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। रॉक एडिक्ट्स मतलब कि रॉक के ऊपर जड़ के लिखा हुआ है, राइट, कि प्रॉपर लिखा हुआ है कि ये हुआ, और ये इनको आइडिया कहाँ से आया था? फ्रॉम द इन्वेडर्स, राइट। So 39 major rock edicts, minor rock edicts, separate rock edicts, major pillar edicts and minor pillar edicts. So ये सब कुछ हमें मिलता है अशोका की रिन से। So name of Ashoka only on minor rock edict. अब हुआ क्या था when they got to know about the edicts and all, तो the people that were deciphered, that were like exploring more about the edicts, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये किसकी है, वो किंग ही ट्रेस नहीं हो रहा था कि किस किंग की ये एडिक्ट्स बनी हुई है, बिकॉज समवेयर मतलब अशोका का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिखा था। अशोका ने अपने आप को दो डिफरेंट नाम से बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट किया ओवर देयर, एंड दैट्स देव नामपिये और पियादासी, दीज टू नेम। वो जो एक माइनर रॉक एडिक्ट पे जहाँ पे उनके नाम अशोका मिला, देन दे गेट टू नो मोर अबाउट, डेफिनेटली अदर रिसोर्सेज से भी उन्हें वो उसका प्रूफ मिला कि दैट्स दीज एडिक्ट्स आर बिलोंगिंग टू अशोका, वो बिल्कुल श्योर है। बट हाँ, इस तरह से दे गेट टू नो अबाउट अशोकन एडिक्ट्स। कंपोज्ड इन प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मगर कुछ उनकी खरोशित स्क्रिप्ट में भी है, जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो ये इन्वेडर्स आए थे उनके कारण, द पर्शियन जो इन्फ्लुएंस था उनके कारण खरोशित स्क्रिप्ट इंडिया में भी आई थी, और इसकी वजह से अशोकन इंस्क्रिप्ट जो है, इंस्क्रिप्शंस जो है उसमें कुछ इंस्क्रिप्ट जो है वो खरोशित स्क्रिप्ट में भी है। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं, and everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. आफ्टर कलिंगा वॉर, जो कलिंगा वॉर हुआ था उसके बाद अशोका वॉज वेरी टच्ड, एंड दैट्स वेयर ही अबैंडन पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। अब उसने ये सोचा कि मैं जो मेरा धर्म है उसके वे में आगे बढ़ूंगा, सो आई विल नॉट गो ऑन फॉर द फिजिकल ऑक्यूपेशन, मतलब फिजिकली लड़ाई नहीं करूंगी, डिप्लोमेसी से, अपनी थॉट प्रोसेस से उसे चीजों को टेकल करने की कोशिश करूंगा।
सो ही ट्राई टू कॉन्कर फॉरेन डोमिनेंट आइडियोलॉजिकली, मतलब उनकी स्ट्रेटेजी फिर ये बन गई थी, बिकॉज समवेयर ही वाज वेरी मच टच्ड कि ठीक है इतनी लड़ाई करके वी हैड इनकलकेटेड कलिंगा इनटू आवर टेरिटरी, बट समवेयर वी आर लॉजिंग आवर आइडेंटिटी, लाइक कितने लोगों की जान गई है एंड ऑल. तो ही गॉट दैट रियलाइजेशन विच मेक थिंग्स पॉसिबल फॉर हिम कि उन्होंने ये अडॉप्ट किया, ही विल नॉट गो अगेन फॉर द फिजिकल ऑक्यूपेशन एंड विल गो फॉर आइडियोलॉजिकल थिंग्स एंड ऑल. So he tried to conquer foreign dominance. He also adopted practical policy of consolidating his empire. But definitely यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे कोई भी ऐसा फिर भी इस तरह का कोई वो नहीं मिलता है प्रूफ कि ठीक है उन्होंने ठीक है बोल दिया मैं फिजिकल ऑक्यूपेशंस के लिए नहीं जाऊंगा, वॉर्स नहीं करूंगा, बट देयर इज नो नथिंग लाइक दैट सपोर्ट कि उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसे अबेंडन कर दिया. आर्मी फिर भी शायद एग्जिस्ट करती थी. सो दिस इज हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट इन द केस ऑफ अशोका. देन कम्स राजुकास, अथॉरिटी टू रिवॉर्ड एंड पनिश पीपल एज रिक्वायर्ड. क्योंकि फिर क्या हुआ, अशोका ने कुछ रूल्स बनाए, अपने धामा बनाया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चीजें वो करी. जैसे एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह सब प्रोहिबिट कर दिया, और जो वो रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलता था तो उनको पनिशमेंट एंड ऑल देना वो राजुकास का काम था. अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ कलिंगा वॉर. एंड जब वो बुद्धिज्म में आए तो डेफिनेटली वो उस पाथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वॉज होल्ड बाय अशोका, and missionaries were sent not only to South India but also to Sri Lanka, Burma and other countries. मतलब जो different countries में buddhism spread हुआ from India, that was contribution of Ashoka. So Ashoka contributed very largely toward this expansion. So that shows the commitment of Ashoka toward Buddhism. So but हाँ एक चीज जरूर याद रखनी है कि जो अशोका का धामा था that was not same as Buddhism, that was different, but हाँ उसमें influence जरूर Buddhism का था, because anyhow he was influenced by Buddhism. तो वो था, but हाँ पूरी तरह से वो Buddhism के accordingly नहीं था. Then comes Dhamma Mahatam Ras. So basically this is more about propagating Dhamma या धर्मा, बिकॉज अशोका का धर्मा जो था वो क्या कहता था, इट प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स. बिकॉज अब देखो जब स्लॉटर ऑफ एनिमल्स या सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल रोक दिया जाएगा तो ब्राह्मण्स को तो प्रॉब्लम होनी है, बिकॉज एनी हाउ दे वर गेटिंग इनकम फ्रॉम दैट सोर्स कि वो सेक्रीफाइसेस एंड ऑल करवाते थे, तो उनकी भी घर का दाल रोटी चल रही थी. तो दे वर वेरी मच अनॉयड विद अशोका's dharma. So अशोका's dharma was not sectarian faith but to preserve social order. तो जो अशोका का धामा था that was not related to like sectarian faith कि किसी particular sect के लिए था, but basic criteria या basic thought process for the dharma of Ashoka was to just maintain the social order so that socially people can align with each other. और जो ये इतनी सारी distributions है वर्ना सिस्टम के वाली इतने सारी problems already arise है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी subtle हो जाए. So that's how Ashoka's dharma was very different from Buddhism. One more thing Ashoka always promoted कि आप लोग भी एक तरह से अपने धर्म के लिए जो भी मतलब आप यात्रा वगैरह करनी चाहिए, सो दैट वी गेट अलाइन टुवर्ड हायर फोर्स एंड ऑल. तो अशोका का धामा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड डेफिनेटली वो एक एज अ ह्यूमन बींग बहुत अच्छा था, मतलब इवॉल्विंग के लिए. सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट धामा एंड ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बट टिल नाउ वी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आवर फोकस वॉज मोर अबाउट अशोका. कि अशोका का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें देन हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी, एंड डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसार, एंड देन वी गेट to Ashoka. Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic, but before that do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So these were the things like that shows how well prepared the Mauryan Empire was, like उसमें किस तरह से different divisions थी. So let me pull up again for you. That was that thing that we had discussed, like जो provinces थी उनको division में, फिर district में, then villages, उससे पहले ग्रुप ऑफ विलेजेस और डिफरेंट फिर इनको हेड थे, जैसे प्रोविंस के गवर्नर, डिवीजन के प्रदेशिकास, डिस्ट्रिक्ट के राजुकास, एंड ग्रुप ऑफ 4 to 5 विलेजेस की बात करें तो स्तमिकास, और विलेज के ग्रामीणी. सो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई थिंक थिंग्स आर वेरी मच क्लियर इन योर हेड राइट नाउ. यू गेट
to know and you are able to connect the dots. And if you are not able to connect the dots yet, तो अगली वीडियोस में और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलता चला जाएगा मौर्यन एम्पायर के ऊपर. बट हाँ, इसे हम सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं, दैट हाउ ब्यूटिफुली the whole system or the whole polity was designed at that point of time. So that was it for this particular video. I want you to just write it down the summary in the comment box below. If you have any doubt, then you can also comment in the comment box. So I will see you all in the next video. Till then, bye bye.